Yesterday we have seen the relation between electric field and electric potential. So electric field as a potential gradient, this relation comes. This we call it electric field as a potential gradient. Difference of potential divided by the distance between the 2 points. All right. तो ये दिस द मेन फार्मूला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना. एंड माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, कि पोटेंशियल विल डिक्रीज व्हेन we go in the direction of electric field. When we move in the direction of electric field, we will find that potential will be decreasing. ठीक है, तो कम होता चला जाएगा. इवन if field is uniform, तो field की direction में if you go, you will find potential will drop. It will be decreasing because field comes from the positive charge. Positive charges के पास खड़े हैं आप, so you will find more potential there. If you move away, potential will decrease. If you go to infinity, potential will be zero. More closer you are to the positive charge, more potential you will find. Okay. So these were the points, and homework was also there. Homework we'll discuss after a few questions we solve, then we'll go to the homework. And before that, I don't think anything was pending. कुछ है इधर pending, ये कर लिए थे questions. All right, चलो. तो उसी के क्वेश्चन करेंगे आज. एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू ऑफ दिस टॉपिक ओनली. ये वाला आइदर दिस और दिस. और अगर कुछ वेरिएबल कंडीशंस है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे ऐसा. इफ ई इज चेंजिंग, ई इज वेरिएबल, इट इज पोजीशन डिपेंडेंट, है ना, पोजीशन के साथ कम या ज्यादा हो रही, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें. और ये इसको हम डिफरेंस, अगर इफ वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट एंड देयर डिस्टेंस, तो ऐसे कर लेंगे. अदरवाइज इफ पोटेंशियल इज वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, dv by dx कर देंगे. x डायरेक्शन में वेरिएबल है तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y डायरेक्शन में वेरिएबल तो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. एंड इसमें इंटीग्रेट कर देंगे अगर फील्ड इज वेरिएबल. अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये फार्मूला, फील्ड इज गिवन, विल यूज दिस फार्मूला. If potential is given, we'll use this formula. Both are same. इसमें देखो, what we have 3 things, 1, 2, 3. 1 will be given either field, then potential difference we can find out. And if potential is given, we can find out field by dividing it with the distance or differentiating with the distance. Okay. So these are the 2 relations, same relation, 2 and 3. Only we have changed the side to tackle the problem. देखो, जैसे पहले हमने ये वाला लिया, पहला वाला फार्मूला, इक्वेशन नंबर 2 लिया. ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं. ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉस आता है, cos 0 1 हो जाता है, बिकॉज जनरली बोथ हैपन टू बी इन द सेम डायरेक्शन. इफ दे आर नॉट, द एंगल आ जाएगा, उसका एंगल दिया होगा कि कौन सी डायरेक्शन में है. फॉर एग्जाम्पल, determine the relation for potential difference in uniform field separated by the distance d along the x-axis. Field is also along the x-axis. Diagram में दिया हुआ है. Field is also along the x-axis. Points are also in the direction of field, separated, parallel है ये. d distance जो है, d is parallel to the field, है ना, along the axis दोनों. तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला ले लेते हैं और dv will be, चलो लिखते हैं यहाँ पर, dv will be minus e. ओके, कुछ प्रॉब्लम है? डू यू हैव सम प्रॉब्लम? यस सर. Meeting is not able to join. Okay. Yes, link Sir, to yes, sir, we have logged the meeting because these children were joining in very late. Okay, Why ma'am, I has logged the started meeting so late? because you were joining very late. Therefore, yesterday I think we decided after 5 minutes we'll log it. Okay, we are opening today. कितने लोग pending है मैम? Only Shashwat and Sanskriti. Okay. Why are you late? क्या प्रॉब्लम थी तुम लोगों को? लिंक तो भेज दिया था मैंने टाइम से.
Sir, I have unlocked. Ask them to join immediately. Okay. ठीक है, मैम has unlocked. Just join both of you. ठीक. Okay. All right. So we were discussing potential difference का ये formula discuss कर रहे थे. So let's write dV is equal to minus B. Keep it in mind. Minus is there. E dot dx लिख देंगे यहाँ पे ना. In place of L, we can write dx or dr है ना. dr is general term. ये general term होता है. ठीक है. So r can be x also, r can be y also, r can be z also, and it may contain only one direction and it may contain 3 dimensions also. तो यहाँ पर x है केवल, ठीक है. Both are in same direction. तो e dx हो गया ये. Cos theta will be 1, cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा. Now dv को क्या लिख सकते हैं? फाइनल पोटेंशियल v2 माइनस v1, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. v2 माइनस v1, ठीक है. और इसको क्या लिखेंगे? dx को x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है. तो x2 माइनस x1 विल बी d. ये डिस्टेंस जो है d है, तो इसको d लिख सकते हैं. तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ed. ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन. नो प्रॉब्लम हियर. देखो क्या किया हमने. वी आर टेकन दिस फार्मूला, दिस बोथ आर सेम. dr की जगह हमने dx लिख दिया या dl की जगह dx लिख दिया, because direction axis is given, we have to change in that direction. तो dv को क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस x पर dx. अगर हम dv को v2 माइनस v1 लिख रहे हैं तो dx को भी x2 माइनस x1 है ना. तो x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस इज x2, दिस इज x1, तो डिफरेंस ऑफ बोथ इज d. तो इसको हमने d लिख दिया. दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग. क्लियर? Are you there? Yes. Now, Yes. using this relation, ये relation use करके you can do it second part. ये homework में you see, if V1 is 100 volt, find V2 if D is 2 meter. If D is if D is 200 centimeter and electric field is 100 SI unit, so you will come to know whether field is really decreasing in this direction. कौन सी field more होनी चाहिए बोलो? Field is uniform. Which potential should be more? V1 should be more or V2 should be more? Which should be more? Come on, just now we have discussed. When we move in the direction of when we move in the direction of field, potential decreases. So V1 has to be greater than V2. V2 कम हो जाएगा because it comes from positive charge. तो जितने जितने आप positive charge से दूर जाएंगे, potential कम होता चला जाता है. Even if field is uniform, and even if this uniform field comes from the sheet, है ना, uniformly charged sheet, तो field तो uniform है, but potential non-uniform है. यहाँ पर more होगा, फिर कम होगा, further less, more away you go from the positive source, lesser and lesser potential will be there. है ना. तो V1 of course will be greater than V2. जब तुम calculate कर लोगे, you will come to know V2 should be less than V1 because V1 is before, V2 is in the direction of field. जितने जितने आगे जाएंगे field potential कम होता जाएगा. Field की direction में जाएंगे potential कम हो जाएगा. That is what is the meaning of this negative sign.
ऑलराइट, तो ये कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके इसमें पुट कर दो ये रिलेशन। नोट कर लो इसको, जस्ट नोट डाउन। सेम क्वेश्चंस कैन बी डन इन ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें सिंबल चेंज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स पोटेंशियल का सेम रहेगा, फील्ड का भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सिंबल चलेंगे, बट दैट फील्ड विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड। hope ki things are clear, ये थोड़ा सा I'm going very slow so that there should not be any confusion, particularly minus का। चलो नोट कर लिया, ये v1 is given, v2 फाइंड करना है, d given and e given। तो some more question based on this formula, इसकी और क्वेश्चन करेंगे। देखो उससे पहले एक पॉइंट सीखते, देखो सपोज दिस इज द कंडक्टर, तो कंडक्टर को अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग में क्या करते हैं, उसको कंडक्टिंग वायर लगा के, और अर्थ के अंदर देयर विल बी होल डीप डिग्ड इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे अर्थ के अंदर मॉइस्चर वगैरह रहता है, और उसमें कॉपर प्लेट वगैरह, ये कॉपर प्लेट डाल के कनेक्टिंग वायर कर देते हैं। होम डोमेस्टिक वायरिंग में अर्थिंग करते हैं, घर में जो रहता है ना, बोलते हैं ये अर्थिंग है, अर्थिंग अर्थिंग है। तो थर्ड वायर जो रहती है ना, उसको कनेक्ट करके, और जो बिल्डिंग है अपनी या मकान है उसमें कहीं साइड में उसको कॉपर प्लेट्स वगैरह के साथ कनेक्ट करके उसको उसको बरी कर देते हैं इनसाइड द अर्थ, सो दैट अंदर मॉइस्चर वगैरह रहता है, तो कंडक्शन इज गुड। ऑल द चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ होता है, शॉर्टिंग होती है ना, तो ये सब चार्ज अर्थ में चला जाता है, तो हमें शॉक नहीं लगता। सपोज ये कंडक्टर कहीं शॉर्ट हो गया है ना, जैसे सपोज रेफ्रिजरेटर है, मेटल ही है वो, ऑलमोस्ट कहीं शॉर्ट हो गई, लाइव वायर रेफ्रिजरेटर के टच कर रही है, इफ वी टच इट वी विल बी शॉक्ड। इफ आवर प्रॉपर अर्थिंग इज देयर, तो ऑल द चार्जेस विल गो टू द अर्थ, दे विल नॉट कम टू आवर बॉडी, वी विल बी सेफ। इलेक्ट्रिक आयरन में भी अर्थिंग होती है, गीजर में, एंड योर रेफ्रिजरेटर, ये सब मोस्ट ऑफ एसी वगैरह में अर्थिंग करते हैं, क्योंकि दे ड्रॉ द हैवी चार्ज, तो कहीं इंसुलेशन मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इंसुलेशन मेल्ट हो गया तो अर्थिंग लाइव वायर जो है उसकी बॉडी को टच कर सकती है। व्हेन इट बिकम्स ओल्ड, जनरली जब वायरिंग ओल्ड हो जाती है तो इंसुलेशन मेल्ट वीक हो जाता है, तो व्हेनेवर लार्ज करंट्स आर ड्रॉन, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। लाइव वायर टचिंग टू द body of the device are touching to the neutral wire directly, तो उसके लिए अर्थिंग की जाती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग की, है ना। ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट अर्थिंग रिमेन्स सेम। अर्थिंग का मतलब क्या है, हम किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ ज्वाइन कर देते हैं, अर्थ का पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ कन्वेंशनली इट इज टेकन टू बी जीरो, कन्वेंशनली। जीरो थ्योरेटिक फॉर्मूले से भी वी कैन जस्टिफाई v इज इक्वल टू k q by r, है ना। तो k ऑफ कोर्स 9 into 10⁹ होता है, बट चार्ज वी आर डीलिंग विद नॉट मच चार्ज, इट इज माइक्रो और इवन लेस देन दैट फ्लोज, है ना। चार्ज हम कैलकुलेट करें तो बहुत कम फ्लो, 1 एम्पियर करंट के लिए वी कैन फाइंड आउट हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो doesn't not much charge in terms of coulomb is flowing. This formula से भी potential comes negligible. So, but even if it is significant, also potential of Earth is taken remains lower than the potential of the electric wiring. उससे कम रहता है हमेशा, क्योंकि Earth is very large, उसका potential KQ by R से कम आता है, और conventionally it is taken 0. And now other point is what? अभी कंडक्टर का हमने, अर्थ इज आल्सो द कंडक्टर, दिस इज आल्सो द कंडक्टर,
अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 रहेगा। हाउ कैन वी से, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कंडक्टर की कि कंडक्टर में पोटेंशियल रिमेन सेम थ्रू आउट। तो ये भी अर्थ इज आल्सो कंडक्टर, वायरिंग इज आल्सो द कंडक्टर, दिस प्लेट इज आल्सो द कंडक्टर। इफ हियर इट इज 0, तो वायरिंग में भी 0, प्लेट पे भी 0। तो अर्थ पोटेंशियल ऑफ अर्थ बॉडी विल बी, तो ये हो गया कन्वेंशनली पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन 0। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, potential of earth body will be 0, potential of earth body is 0। जैसे रेफ्रिजरेटर की बॉडी है, 0 पोटेंशियल पे रहेगी बिकॉज इट इज ऑलवेज अर्थ। बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन live wire is broken in touching to the body of refrigerator or electric iron or some geyser, उस समय उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। If you touch it, charge is likely to go to your body, है ना। But if it is earth, all the charge will be going towards earth. It will not come because earth ये connecting wires have the 0 almost negligible resistance, बहुत कम होता है इनका, conductors हैं। But our body, being conductor, has resistance of roughly 10,000 kilo ohms, है ना। इतना होता है ह्यूमन बॉडी का, और इवन मोर। और जो वायरिंग है, कॉपर वायरिंग, इट इज रफली लेस देन 1 ohm। Most of the current will go in the copper wiring and then go to the earth. Our body का 10,000 ohms है, why at all it will come to our body? So problem comes when shorting takes place. Otherwise there is no problem. Earth remains no problem. It is for safety point of view, earthing होती है। Are you getting it? These points are not there in our book, but I am telling you for day-to-day life. And we can just explain with the theory। है ना, हमारे पास फार्मूले सब रहते हैं। ओम्स लॉ से I is equal to V by R, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे V by R, है ना। 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी बॉडी का 10,000 ohms। तो करंट इज माइक्रो मिली एम्पियर, but that milliampere current is also very dangerous for nervous system of human body। शॉक लगता है उससे भी काफी। तो बेटर in case of shorting, all the current should go to the earthing, not to our body if we happen to touch it। तो potential of earth body is 0, है ना। इस पे even if it can have some charge, even if it can have some extra charge, this point is slightly non-intuitive। तो बोले पोटेंशियल 0 है, बट चार्ज कैसे हो सकता है? देखो इसमें, इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट वी आर डूइंग इट, एक हमने चार्ज प्लेट ले ली जिसका पोटेंशियल V है। नेक्स्ट टॉपिक का सिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स ओनली, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड का रिलेशन यहाँ पर, because this is required in the next topic। ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर। यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया कंडक्टर। दिस इज वन मेटल प्लेट, दिस इज अदर मेटल प्लेट, और इस पे हमने कुछ चार्ज दे दिया इस पे बाय सम मींस, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन और बाय समथिंग एल्स। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसको हमने अर्थिंग कर दिया, ठीक है। तो अर्थिंग करने से इसका पोटेंशियल तो 0 हो गया, बिकॉज अर्थ का 0 है तो इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है पहले से, ठीक है। इसका पोटेंशियल V है, तो ये पोटेंशियल यहाँ भी है, इस प्लेट के ऊपर भी जाएगा, है ना। यहाँ पर V है तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज वी आर मूविंग अवे इन द यूनिफॉर्म। यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, बट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जब तक ये इसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। ये भी 0 है, ये भी। तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इस प्लेट के आसपास, इधर से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज तो नेगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इसके ऊपर,
जब तक वो इसके ऊपर पूरा पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव। ठीक है, तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, पोटेंशियल ऑफ अर्थ बॉडी इज जीरो, तो इसका जीरो पोटेंशियल है, जीरो वी कर दो इसको, जीरो वी। ठीक है, जीरो वोल्ट। इवन इफ इट कैन हैव सम चार्ज, चार्ज कहाँ से आएंगे, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन। अर्थ कैन प्रोवाइड यू लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यू नो अर्थ कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन प्रोवाइड यू इलेक्ट्रॉन्स बोथ वे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज इसका पॉजिटिव, इधर ऐसे फील्ड आ रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पर, इसकी वजह से इट विल सेंड द इलेक्ट्रॉन्स टिल द पोटेंशियल दोनों मिला के जीरो ना हो जाए। तो चार्ज देखो इसके ऊपर चार्ज आ गया अर्थ से, है ना। This we can say the induction method of charging the plate conductor. This is the third method of charging the conducting plate, है ना। without touching it ये चार्ज हो गई, देखो नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, क्यों चार्ज हुई, जीरो पोटेंशियल करने के लिए, बिकॉज इट रूल्स कैन नॉट बी वायलेटेड। अर्थ कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो इसको चार्ज अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अर्थ में से जीरो करने के लिए। So, but my question is something else. My question is this: refer the diagram and find the relation for potential difference between two conducting plates. Conducting plates की spelling ठीक कर लो। I will take your doubts after this. तो देखो सेम फार्मूला, पहले मैं just let me complete this question, then you ask your doubts. तो क्या फार्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस dV is equal to minus E dx, dl कर लो। चलो तो ये क्या हो गया, V2 माइनस V1 माइनस E dl कितना लेंगे, ये डिस्टेंस दिया हुआ देखो, d इज गिवन, तो ये d हो गया, cos 0 is 1। तो V2 कितना, इसका V लिया हुआ दिया है, V ले लो, और ये V2 इज ओके, सॉरी ये V1 हो जाएगा। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर रहेगी ऐसे, तो दिस विल बी V1 एंड दिस, ये तो 0 वोल्ट है, दिस विल बी V2। ठीक है, आर यू गेटिंग इट, सीक्वेंस इज ऑल राइट, ये सीक्वेंस यू टू मैनेज प्रॉपर्ली। तो V1 V2 इज 0 वोल्ट, यहाँ पर 0 लिखते हैं, एंड ये V हो गया, ये E हो गया, और ये D हो गया, तो ये V इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में ये हम यूज करने वाले हैं अभी कैपेसिटर। डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैपेसिटर, तो वहां पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, वेद फार्मूला वी कैन कॉल इट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, D इज द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, so Ved formula we call it, है ना। easy to remember Ved, कहाँ पे यूज करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो Ved फार्मूला बन जाएगा। हाँ, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, बोलो। Shall I divide these two points again? What main points I told you? Conducting earth conductor will have zero potential, and और क्या होता है, even if it can have some charge, अगर जरूरत पड़ती तो चार्ज आएंगे, अदरवाइज इफ नॉट रिक्वायर्ड इट विल नॉट टेक द चार्ज फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, ये पॉजिटिव वाला अपना पॉजिटिव वाली प्लेट पास में रखिए, और वो अपना यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप होगा। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू, मैंने बोला था कंडक्टर में सिंगल लेयर ऑफ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर में नहीं होगी, बट ये दो कंडक्टर्स है ना, तो ये इधर इधर सिंगल लेयर ऑफ चार्ज बन जाएगी, इधर पॉजिटिव रहेंगे और अंदर साइड में नेगेटिव रहेंगे इसमें, और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इधर
they will come closer because attractive force से they will come closer. इधर बैक साइड में नहीं रहेंगे, इसके भी बैक साइड में नहीं रहेंगे. तो conducting plate can have the charge one side provided nearby other conducting plate is also there. Isolated के इसमें नहीं है. अगर isolated plate लिया तुमने, इसको कोई चार्ज दिया तो फ्रंट साइड में भी आएंगे, बैक साइड में भी आएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. तो ये पॉइंट्स यू हैव टू रिटेन ऑलवेज, अदरवाइज यू विल हैव द डाउट कि सर ये क्या हो गया. कैन यू रीड इट? कन्वेंशनली लिखा है मैडम ने, जस्ट conventionally. Potential of earth is 0 and therefore potential of earth's body will be 0 because conductor have the same potential throughout. Okay. So keep writing the notes and keep revising the notes. कोई भी new point I am not writing directly. पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा है उसको यूज करते हैं. If there is a new point I will explain you, then only I will write. ठीक है. तो ये भी एक फार्मूला बन गया जो कि हमें आगे काम आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में. Now taking this question, same topic के question I told you I will be doing 5 or 6 questions. Next one is again for same topic. How to do this question? बोलो. Can you tell? Can somebody tell how to tackle this problem? Sir, by integrating. Differentiation. नहीं, differentiation. देखो, we have the formula this minus dv by dx है ना. तो v is given, यहाँ पे पुट कर देंगे, फील्ड मिल जाएगा है ना. तो मैं कर दो, we'll do it here itself. माइनस इसमें पुट कर दो x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. माइनस, डोंट फॉरगेट द माइनस, माइनस बाहर रहना चाहिए. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x. 1 का 0 हो जाएगा, उसका छोड़ दो. और at x is equal to 2, E will be minus 2 into 2 minus 4 volt. That's all. ये आंसर हो. तो नोट कर लो इसको. Is it uniform field? Answer is no, because field का relation minus 2x है. तो x, if x changes, तो E also changes. x पे डिपेंड कर रहा है. x 0 है तो फील्ड 0 है. x 1 मीटर है तो फील्ड -2 ऐसा यूनिट है. नहीं, फील्ड का यूनिट चेंज हो गया, तो गलत हो गया. वोल्ट पर मीटर है ना. वोल्ट पर मीटर है. यहाँ से देखो, पोटेंशियल का वोल्ट और डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर. ओके, सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. सिमिलर, ये जो इसमें देखो डिफरेंशिएट करना पड़ा. एंड ग्राफ में देखो कैसे करेंगे. सपोज ये क्वेश्चन है, रेफर डायग्राम एंड फाइंड द फील्ड एट ए बी सी. अच्छा, जस्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस वन, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, पता है. dy by dx इज कॉल्ड स्लोप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, v है, यहाँ पे x है. तो अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाए x के साथ, उसका स्लोप निकालने तो फील्ड मिलती है. स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा. tan थीटा इज नथिंग बट y by x है ना, dy by dx. तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे. यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है. तो वेदर पॉइंट इज हियर और पॉइंट इज हियर, कोई फर्क नहीं पड़ता. स्लोप इज नॉट चेंजिंग, फील्ड विल नॉट चेंज. अप टू हियर फील्ड विल बी कांस्टेंट, देन फ्रॉम हियर टू हियर फील्ड विल बी कांस्टेंट, from here to here field will be constant. So doesn't make the difference a slightly above here. इसलिए a की corresponding value नहीं दी है मैंने, इसके corresponding value दी है. It is 1
करस्पॉन्डिंग टू दैट 10 वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट लिख लो और एक्स जो है मीटर में है, SI यूनिट में बोल। तो पॉइंट ए पे निकालना है, तो फिर से सेम फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी की जगह भी डेल्टा वी यूज करेंगे, बिकॉज डिफरेंस इज लार्ज। यहाँ से हम देख सकते हैं ये और ये, इस डीवी क्या है, डीवी इज दिस मच, दिस इज डेल्टा वी, डीवी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, और दिस इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1, dx को या डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, H2 माइनस X1, ठीक है। तो माइनस रहेगा, तो V2 कितना है, ये 10 वोल्ट, किसके करस्पॉन्डिंग है, X2। ओके, पहली वैल्यू कौन सी, ये, बिकॉज A is on this line, तो we have the 2 पॉइंट्स जिनकी वैल्यू पता है हमें इस लाइन पे, ये 0 0 है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग 0, वो ओरिजिन पर है, वहां पे पोटेंशियल भी 0 दिख रहा है ग्राफ में, ये V1 हो गया, दिस इज V2, ये X2 हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी V2। तो V2 इज हाउ मच, 10 वोल्ट, और X2 इज 1 मीटर, ऐसा क्लियर। ये सेकंड वैल्यू है, इस लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 1 वैल्यू, बोथ आर 0 0। 2 वैल्यू कौन सी है, डिस्टेंस इज करस्पॉन्डिंग टू X2, डिस्टेंस इज 1 मीटर, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज 10, ठीक है। तो बस अभी देखो क्या आ रहा है, इट इज कमिंग माइनस 10 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे फील्ड इज 10 वोल्ट पर मीटर थ्रू आउट ऑन एनी लाइन, बिकॉज स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा, स्लोप चेंज हो गया तो फील्ड भी चेंज। अगर ऐसे कर्व होता तब कैसे करते, फिर हमें वहां पे एंगल दिया होता है ऐसा, corresponding to that part angle is 60 degree or something, so tan theta, slope is nothing but a tan theta। कर्व लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका tan theta लिखते हैं, that is slope, that gives you the required quantity। स्लोप में दो क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, and that is nothing but tan theta, ये एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, ये ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए फिर से ये फार्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक। थर्ड पार्ट के लिए फिर से ये फार्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक। इनका नाम कुछ लिख लो, फिर ABC है, दिस इज O P Q R, R पर 5 है, दिस इज 5 इज नियर R। कैन यू डू द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो दैट इज इन होमवर्क। ट्राई करो यही फार्मूले से, बी पर होमवर्क करना है और थर्ड पार्ट भी सी पर। अभी बी पे निकालने के लिए इसका निकाल लो, और सी पर निकालने के लिए ये 2 पॉइंट ले लो, क्यू एंड आर, हो जाएगा। Yes, sir. ओके, दिस इज अगेन होमवर्क में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है समटाइम्स, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक गिवन इन एनसीईआरटी बुक, जिसका डेरिवेशन भी किया हम लोगों ने। तो नोट डाउन एंड ट्राई टू डू योर ओन, एंड ऑलवेज रिटेन माइनस, ये वाला माइनस छोड़ना नहीं तो तुम्हारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे, because we are dealing with the negative scalar quantities, potential is the scalar quantity, तो उसके लिए माइनस है, तो फार्मूले में तो we cannot leave it। Be quick, थोड़ा सा मैं have to cover some more points before we end the class। Sir, done. ओके, तो देखो, ऑलराइट, ठीक है, ये देखो ये वाला, ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, देखो बट इम्पोर्टेंट। देखो ये एक शीट है, इनफाइनाइट शीट, इस तरह की शीट जो दिखेगी एवरी टाइम इट इज इनफाइनाइट शीट। एंड कौन सी इनफाइनाइट शीट है, हैविंग द सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। अपने कोर्स में क्या है,
infinite non-conducting sheet having single layer of charge. तो conducting sheet अगर होगा तो they will mention, है ना. Conducting का भी हम लोगों ने derive किया क्या? Okay, we'll conducting sheet का हमने derive किया था क्या extra में? Okay, we'll not get confused yet. We'll we'll check it tomorrow. But again, it remains non-conducting uniformly charged infinite plate. Okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. It is infinite non-conducting sheet. In NCERT book, they have not mentioned conducting or non-conducting, but you should very clearly know it has to be non-conducting, then only one side charges can be placed in isolated plate. क्या फार्मूला है इसका, क्या डेरिवेशन किया हम लोगों ने, कितनी फील्ड होती है इसकी बोलो. What derivation we have done, do you remember? Sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है वो, so that we are going to use it. Now A B point है, what we have to do, refer the diagram, find the potential difference between A B, consider infinite plane non-conducting, consider infinite non-conducting sheet. ठीक है, करो फटाफट, do it fast. Infinite word I am just skipping, but it is infinite. Non-conducting word, it is non-conducting as per our course. Got it? आया कुछ आंसर? क्या फार्मूला है, फिर से सेम फार्मूला अगेन, डेल्टा वी या डीवी, नहीं लेफ्ट साइड में डीवी था इधर, माइनस ईडीएक्स. ठीक है, तो ये क्या होगा, वी बी माइनस बी ए माइनस ई कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है डी. दैट्स ऑल. Therefore, ठीक है, तो बी पर पोटेंशियल कम है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पर. ऑलराइट, समझ में आ गया. ओनली थिंग क्या करना था, हमें फार्मूला याद रखना था. इनफाइनाइट शीट का जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर ये इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव है तो ए का पोटेंशियल कम होगा, बी का ज्यादा होगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग. नेगेटिव चार्ज से अगर हम दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है. तो इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव, है ना, माइनस आएगा बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव. और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि भाई if we are close to the if we go in the direction of field, potential will decrease. Field इस तरफ है, potential will drop. A will have more potential, B will have less potential. तो B का potential less है, less में से more minus किया तो minus बचेगा इधर. All right. Now I am giving you the next question for the infinite line charge. इसका फिर से सेम सिचुएशन है, ये डिस्टेंस d दे दूं क्या,
R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस D ले लो, ठीक है? नहीं, D नहीं, इस R1 एंड R2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इसी के टर्म्स में। R1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, ये डिस्टेंस है, और R2 इसकी डिस्टेंस है पॉइंट B की लाइन चार्ज से। बिकॉज उसमें रिलेशन अपना लाइन चार्ज में क्या आता है, ऐसे टू लाइन चार्ज की फील्ड कितनी होती है, 2 के लैम्डा बाई R, R के टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है? इसमें हम D नहीं ले सकते यहाँ पर, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो R1 R2 के टर्म्स में लाएंगे। क्लियर? Refer diagram and find potential difference between the points A and B. Now your answer will be in terms of R1 and R2. R1 and R2 are the distances of points from the line chart. Can you do it now? Not now. ये इसको send करना है. This is interesting question. This is very interesting question. You have to be slightly careful in that, and this has been asked in the board examination. तो सॉल्व करो और भेजो जितना भी समझ में आता है। राइट फार्मूला, एटलीस्ट कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन से फार्मूला में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये सब पॉइंट यू हैव टू पुट इट। Points A and B along the infinite line charge. Yes, refer diagram and find potential difference between the points A and B. A is separated, Find A the has a distance R. between point A and B in an infinite line charge. रेफर डायग्राम है ना, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है सारी, इसलिए पूरा नहीं लिखा हमने। पोटेंशियल एट ए एंड बी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है ना। क्लियर और नॉट? किसको डाउट है? जस्ट कम अगेन, आई एम नॉट गेटिंग यू। हु हैज द डाउट? बोलो जल्दी से। Trisha, you have the doubt? No, sir. Yes. Clear to everyone? Okay, time is over. I am ending here itself. Refer this diagram and find the potential difference between the points A and B, which are at distance R1 and R2 from the infinite line charge. Infinite line charge का फील्ड कितनी होती है, जल्दी से बताओ। 2 के लैम्बडा बाय R. 2 के लैम्डा बाई R, तो K कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट में वैल्यू लिखना जरूरी होता है, बिकॉज we should not leave it in the terms of K. We have to write all the values of K, which is 1/4 pi epsilon naught. तो कितना बचेगा फिर? It will be 2 ऊपर है, नीचे 4 है, तो 1/2 बचेगा। It will be like this, ये आएगा। तो एंड में वैल्यू पुट कर देना। In terms of this, try to write the answer always. Don't leave it in the terms of K, which are generally not written. Okay. So what we have seen today, we have not seen anything new today. हम लोगों ने एक ही फार्मूला जो होता है उसी के सारे क्वेश्चन देखे। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, when potential is given we have to differentiate and get the E, and when E is given, so we have to cross multiply and like this we have to put the value of E and get the potential difference there, and if E is variable then integration कर देंगे ऐसे दोनों तरफ। तो ये तो पोटेंशियल V2 - V1 ही रहेगा हमेशा, और E की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, R1 to R2 है। बस, तो सेम फार्मूले के क्वेश्चन किए हमने, नथिंग एल्स, नॉट न्यू टॉपिक। तो नोट कर लिया ये। Yes, sir. R1 and R2 are distances of point from the wire. R1 and R2 distances of points A and B from wire.
from line charge. Okay, ठीक है. Ending here itself. There will be next class. All right.